welcome to 100 News. Hi, this is Tulika Pandey. Today we have in conversation with us Dr. Pawan, and also he's a former air marshal. What would you like to say about today's event? I think wonderfully organized event, and I was very touched with the way the parents, the students, and the pass out students, as well as their parents, all those who came to get their degrees, they had a very good, intense interaction with each other, and I could see, that those who have passed out sharing their experience with those who are coming in. Now, those coming in, they're apprehensive, कि आगे क्या है. So these students tell them आगे क्या है. So you can already see their apprehensions going down, their fear levels coming down, and their enthusiasm building up. So I think wonderful way to have a pre-departure ceremony. Now, would you like to make it more easier for more people to get into? You see, what I am looking at, that medical education should be made more accessible and more affordable. Okay, even in our own country. I think National Medical Commission is not looking at this. You see, they have come out with certain regulations, Correct. but they are now re-looking at the way we are running medical education in this country. And I am very, very optimistic that over a period of time, medical education in this country will not only become more accessible but also become more affordable. However, having said this, the outflow of students abroad gives them a wider perspective. They come back with newer ideas. So the country grows with those inputs. It's not only this that you are doing, what you're doing inside is internal to your country. But somebody comes from outside, he brings some different perspective to the way you see things. So I think globalization was the way, and in medical education also globalization is the way. Okay, one last message that you would like to give to all the aspiring students who will be, soon joining. See, my only contention is that parents have spent a lot of their money. They have, as I said earlier, they have sacrificed their dreams. So my advice to students is don't lose the purpose for which you are going there. Do everything, enjoy yourself, learn different cultures, mix in the culture, but your primary aim is to study, get a degree, come back to India, pass your foreign medical graduate examination or national exit test, whatever it is, but study you must, and study on a daily basis. It's not a class 10, class 12 examination. It is a lifelong journey, and you have to learn to travel this journey in the same manner as you started it. It never ends. We have Dr. Khushbu, who is a well-known gynecologist. Today she's with us. Ma'am, welcome to 100 News. Thank you. Tell us about this event, what it is all about, and how you collaborated with O State University and your consultancy, what it is all about. Northwestern Education Service, we provide students, like we help and guide students to get admission in MBBS in O State University. So we help students from first day when they get admission in India till their whole journey. We help student. We have various offices in different city in India and in Kyrgyzstan as well. So we always happy to help student and guide them. So this is our main service we provide. Okay. So as you said, आप स्टूडेंट्स को बाहर भेजते हैं, साथ ही साथ इंडिया में भी जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको हेल्प करते हैं. सो बेसिकली किस तरह का मदद आप उनको देते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल नीट इज़ मैंडेटरी टू नो मैटर वेयर यू स्टडी. इंडिया में आप पढ़ रहे हो या बाहर जा रहे हो, देन आफ्टर ऑल अगर आप किसी को बाहर भेज रहे हैं देन दे हैव टू क्लियर अनदर एग्जाम विच इज़ ऑल्सो अ वेरी टफ एग्जाम एज कम्पेयर टू नीट इटसेल्फ. सो कैसे इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं आप लोग? So after completing their MBBS in foreign city country, when they come to India, they should clear FMG exam. But for this exam, we already help them for extra classes in university in Kyrgyzstan, and even in India we help them. So they can easily pass this exam and get license in India. Since how long you are in this business? I heard that it's been almost 25 years, but would be more insightful when you tell us about your journey, how it has been so far. 25 years, a long span of time. So how do you look at that? Yeah, since 25 years we provide service in this field. So basically
we help and guide student to get admission over there, and this is our main motto is to help student. ओके सो अपने स्टूडेंट को बाहर भेज दिया, अब नाउ कम्स द मेन चैलेंजिंग पार्ट बिकॉज दे आर इन अ फॉरेन कंट्री. व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज डू यू प्रोवाइड आफ्टर दैट? बिकॉज सेंडिंग इज समथिंग, नाउ दे विल हैव देयर डिफरेंट एक्सपीरियंस, डिफरेंट कल्चर एंड एवरीथिंग. हाउ डू यू केटर दैट? हम स्टूडेंट को जब यहाँ से भेजते हैं तो हमारी वहाँ पे जो ऑफिस है वहाँ पे भी हमारे स्टाफ होते हैं, वो स्टूडेंट को उनके बेसिक थिंग्स शॉपिंग करने से लेके उनकी बुक्स या एवरीथिंग जो भी उनको रिक्वायरमेंट होती है वो सब चीज़ें में वो हेल्प करते हैं. उनकी पूरा मतलब परेशानी कुछ नहीं होती, बिकॉज जैसे इंडिया में हमारी ऑफिस है, स्टाफ है, ऐसे वहाँ पे भी है, तो कोई परेशानी नहीं होती है. ऑल्सो वुड लाइक टू नो मोर अबाउट ओश स्टेट यूनिवर्सिटी. कैसे इनके बारे में पता चला, फिर कैसा एक्सपीरियंस है सो फार वर्किंग विद देम? ओश लाइक किर्गिस्तान, वो कंट्री इंडियंस को बहुत लाइक करते हैं. दे आर वेरी फ्रेंडली, उनकी हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी है. वो इंडियंस को लाइक उनकी फैमिली है इस तरह से ट्रीट करते हैं. तो जो हमारे स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं उनको कभी कोई लोकल से परेशानी नहीं होती है. इवन कुछ भी चीज़ के लिए वो हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं. दे आर वेरी फ्रेंडली. What it is all about and how many students are going abroad today? Abroad, in our faculty, every year, around 1,000 students we are getting inside our family, Osh State University, and around in our faculty, totally 4,000 students studying. 4,000 students. That's a large number. Taimur, how do you cater these number of people? Do you find it difficult to manage all of them, or how's that? Actually, there is no difficulties. We have a really big family, and all of the staff they speaks English well, so we can find the common language with our students. And we also have the recruitment companies who are providing us the students, and they are also working 24/7. So it's not an issue. What all courses do you have, Smile? We are when our students admitted in our MBBS curriculum is 5 years. Then 5 years from anatomy, physiology, histology they are starting till clinical subjects they will end. Is there any specific criteria for Indian student to get admission in your university? Yeah, when you're they need passport, and then we are giving the invitation letter for visa. Then they are at embassies, they will give the visa. Then they are coming our university. Then they will admit to the exam. Then they can start our school. So here there's a consultancy who take care of all the students who is going, and then So how are their services? So actually, we are working together in the cooperation, because when we need some response from the family side, or we need to inform the students' parents, because actually they need to know if their son is not studying. So even the mails with the about their sons or daughters study success, we are informing through the companies, and they are sending that mails, and then the angry parents start to call their sons or daughters and make them study and everything and so on. We have Dr. Suraj Ahmed with us. So you worked as a faculty going to different universities, college across the globe. Right. How it feels and what kind of exposure you give to the children's? The kind of exposure that we want our students, those who are studying abroad, should be pretty much similar to what they are getting here in India. So actually what is our work is to orient them for the subject. For example, my subject is pharmacology. Likewise, my team will be there that will be taking care of the other subject as well. So what I do is teach the subject just according to the Indian pattern and the guideline that is being utilized in our country. In addition to that, we are also guiding them how to clear the examination called FMG, that is Foreign Medical Graduate Examination. It is a licensure based exam which any student, those who study MBBS from outside, they have to give it in India, and only when they clear it, then only they will be getting a license to practice. Dr. Suraj, as I said, you are teaching globally. What difference do you find teaching student here in India and across when you go outside of India? देखिए, first and foremost, one very
actually there is not much difference, but one difference that I find is with respect to the mentalities. The one that got admission here, especially in the government medical colleges, their mindset is very much clear that okay, I have got this seat with very much blood and sweat. मतलब अपने मेहनत से मैंने लाया है. Correct. But I mean after this I should not stop, and they don't stop also. But sometime, especially in the private colleges or any other colleges, those who are going outside, the mindset is little bit different. So they take things a little bit lightly. That is one difference. Other than that, with respect to exposure that we are giving, there is no difference. The kind of subject that I am teaching for our Indian students, the same kind of subject I will be teaching, same stuff. Everything will be same to our students, those who are abroad as well. The only difference is a bit of mentality. If that would improvise, yes, we have got admission by the blood and sweat of our parents, then even these guys could also, excel same like any other Indian graduate. Also today the event is all about OSH State University. How long you have been associated with them and what kind of experience do you had so far with them? No, I had always have a very beautiful memories with Kyrgyzstan with respect to teaching the students and with respect to countries and with respect to the love, care and attention that is given to the students. So we have been associated since long. If I remember well, that was immediately around COVID. I got to know and I started visiting to these colleges, and everything with respect to the college, their food, their living was at par. I mean, some of the facilities I find it even better than what they have in the private medical colleges of India. In conversation with Feroz Hussain, who is Managing Director for NWS in Northeast. हमारा अभी इस साल से हमने अच्छे से स्टार्ट किया NWS NE के लिए. नॉर्थ ईस्ट के लिए इस साल हमारा टोटल 55 स्टूडेंट्स आए हैं, एंड अगले साल के लिए और भी हमारा पूरा स्टाफ ऑफिसेस ओपन हो रहा है असम के, अरुणाचल प्रदेश के, हर एक एंगल पे. बेसिकली पहले वहाँ पे ऐसा होता था कि जो अनऑथोराइज कुछ कंपनीज होते थे तो स्टूडेंट के साथ थोड़ा बहुत वो सारे सिनेरियो होते थे. इसीलिए हमने अभी डिसाइड किया कि हम असम, नॉर्थ ईस्ट के हर एक कोने पे जाएंगे ताकि जो हमारा स्टूडेंट्स की ड्रीम्स है, सुनहरी जो सपने हैं उनके हम पंख दे पाए. तो यही हमारा प्लानिंग बहुत है. बाकी अगर सबकी आशीर्वाद रहेगा, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहेगा, तो हम हर एक इंसान को हेल्प करने के लिए तैयार है. This is Dr. Shakil Ahmed. I'm a orthopedic surgeon. Now I am posted in GTB Hospital, Shadra, and Managing Director of Northwestern Education Service. सर कितने समय से आप नॉर्थ वेस्टर्न एजुकेशन सर्विस के साथ जुड़े हुए हैं? मुझे 15 साल से ज़्यादा हो गया, मैं नॉर्थ वेस्टर्न के साथ में हूँ. और नॉर्थ वेस्टर्न जो है इस टाइम टॉप 10 ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज़ है इंडिया के अंदर, टॉप 10 में एक ऑर्गेनाइजेशन है. कंसल्टेंसी Yes. रूप में काम कर रही है. Yes. आपने अपने मेडिकल की पढ़ाई कहाँ से की है? मैंने ओस स्टेट यूनिवर्सिटी से की है. ये जो आपको दिख रहा है लोगो ये वाला, ये ओस स्टेट यूनिवर्सिटी. इसी यूनिवर्सिटी से मैंने 2019 में अपना डिग्री लिया था. अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ के उसके बाद उसी यूनिवर्सिटी के काम को आगे बढ़ाकर हाउ डू यू फील सर? ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ मैं, उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. इससे अच्छा और क्या होगा लाइफ के अंदर. बहुत अच्छा लगा मुझे. आप एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर वर्क करते हैं NWS में, तो हाउ पूरा टीम कैसे काम करती है, क्या है पूरा प्रोसेस स्टूडेंट को बाहर भेजने से लेके उनके वहाँ में रहने का, सारी चीज़ों का कैसे ध्यान रखते हैं? मैं आपको बताऊं, देखो जैसे इंडिया के अंदर हमारी जो नॉर्थ वेस्टर्न ग्रुप है, इसकी 20 से भी अधिक ब्रांचेज है जो हमारे इस टाइम नॉर्थ वेस्टर्न के अंदर है, जिसके अंदर हमारे 150 से भी ज़्यादा जो एम्प्लॉइज़ वर्क कर रहे हैं. इसके अंदर जो एम्प्लॉइज़ वर्क कर रहे हैं, हर एक आप किसी भी एम्प्लॉइज़ से आप किसी भी टाइम सहायता ले सकते हो, और हमारे एम्प्लॉइज़ से कॉन्टैक्ट करके आप एडमिशन के रिगार्डिंग बात करिए, अपने बच्चे के रिगार्डिंग बात करिए, आप सारी चीज़ के रिगार्डिंग बात करेंगे. आपको 24/7 हमारी जो टीम है वो अवेलेबल होती है. और हम जो है जो नॉर्थ वेस्टर्न टीम है, यहाँ से दिल्ली से लेके आपके जहाँ तक बच्चा आपका डेस्टिनेशन है उस तक जाने के लिए पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है. What would you have to say about all these students who are going abroad? I'm just telling you about this is today we have a pre-departure ceremony, especially for OSU State University students those who are studying international medical faculty of OSU State University. And it is done by Northwestern Education Service Private Limited, especially for those who are flying in charter flight, one single flight. सो जो स्टूडेंट है वो ईज़िली ट्रैवल कर सके, पेरेंट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, एंड
इसमें क्या है, पेरेंट्स भी पहले मिल लेते हैं एक दूसरे के साथ, बिफोर स्टूडेंट हैव टू नो ईच अदर, बिफोर दैट पेरेंट्स हैव टू नो, मिंगल कर लेते हैं बेसिकली, पहचान जाते हैं और हम भी ब्रीफ कर पाते हैं कि बिकॉज फॉर दैट इफ़ आई एक्सप्लेन कि पेरेंट्स क्या होते हैं, इनिशियली जब एडमिशन लेते हैं सो दे जस्ट मीट विद सिंगल काउंसलर, ठीक है, और वो भी हो सकता है पर्टिकुलर एक स्टेट से हो, लेकिन जब उसके बाद वो जब इस तरह की सेरेमनी में आते हैं तो दे नो कि वो सिर्फ पर्टिकुलर दिल्ली, यूपी या कोई स्टेट से नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स हैं। सो वो एक दूसरे के साथ मिंगल कर जाते हैं और ये स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा रहता है और यूनिवर्सिटी के लिए भी, ताकि हम भी बच्चों को खुले हैंड के साथ वेलकम कर सकें। ओश यूनिवर्सिटी के साथ आप लोग कब से जुड़े हुए हैं और कैसा रहा एक्सपीरियंस इनके साथ काम? मैं ओश स्टेट यूनिवर्सिटी में मोर देन 15 ईयर से मैं ओश में हूँ। Okay, I just completed my MBBS in that university. I completed my MD is there. I did my MPH is there, and now I completed my PhD. Okay. So it's my second home. Okay. Or sometimes it's my first home. India for me second home because maximum time मैं वहीं रहता हूँ और इंडिया में बहुत कम टाइम के लिए आ पाता हूँ। और इट्स हैपन लाइक टुडे आल्सो कि मॉर्निंग आई लैंडेड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फंक्शन एंड टुमारो मॉर्निंग आई एम गोइंग बैक। यूनिवर्सिटी का भी तो कॉपरेशन ज़रूरी है ना, वरना आप कैसे? कॉपरेशन ज़रूरी होता है जब यूनिवर्सिटी को एक बेटर पार्टनर मिलता है। बेटर पार्टनर इन द सेंस वो एक ऐसी कंपनी के साथ टाइप करती है जो सब स्टूडेंट्स के लिए करके देती है एंड टू एंड सर्विस। सो यूनिवर्सिटी का पार्ट इतना रह जाता है दे कैन एजुकेट स्टूडेंट, दैट्स इट, ठीक है, और उसके बाद बच्चों का ख्याल रखने से लेके ले जाने से लेके A to Z थिंग्स डन बाय द कंपनी। अब कहाँ से, आपका नाम क्या है? मैं मेरठ से हूँ, मेरा नाम सुम्बुल सिद्दीकी है। सुम्बुल, आप पढ़ाई करने के लिए बाहर जा रहे हैं, ओश यूनिवर्सिटी आप जा रहे हैं, कैसे पता लगा, कैसे सोचा कि मेरे को फॉरेन में पढ़ना है? मेरा एक ड्रीम था कि मुझे बस डॉक्टर ही बनना है, उससे अलग मैं कुछ और नहीं बनना चाहती थी। तो मेरे पेरेंट्स भी यही चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। दैट्स वाई मैंने सोचा कि अगर कंट्री से भी बाहर जाना पड़े तो मैं जाऊंगी और वहाँ जाकर पढ़ूंगी। तो कैसे पता लगा यूनिवर्सिटी के बारे में आपको? मेरी सिस्टर है, उनके फ्रेंड के थ्रू, वो अब मेरे सीनियर ही रहेंगे, उनके थ्रू पता चला। अच्छा, तो फिर अभी जब आप बाहर चले जाओगे क्या कुछ मिस करोगे यहाँ के बारे में? इंडिया के ऑफ कोर्स फैमिली, ओनली फैमिली, नथिंग खाना एल्स। नहीं? नो नहीं हो? नो फूडी नहीं, बहुत कम खाती हूँ, मतलब इतना कुछ नहीं है क्रेज़। किसी कंसल्टेंसी से कंसल्ट किया था या नहीं? हाँ, अच्छा, NWES। अच्छा, कैसा रहा उनका सर्विसेज वगैरह? अच्छा था, उन्होंने मतलब क्वेश्चंस के रिप्लाई किए थे, जो भी मेरे को कंफ्यूजन थी सब उन्होंने क्लियर की। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम इलियास अहमद है। कहाँ के रहने वाले हो? जी, मैं असम गोलपारा से हूँ। आपने फॉरेन जाने के लिए, मेडिकल की पढ़ाई के लिए फैसला कैसे लिया? फैसला मतलब जब नीट का एग्ज़ाम दिया था तो सिलेक्शन हो नहीं पाया और फिर ऊपर से लोगों के ताने और बाद में थोड़ा बहुत रिसर्च किया था, यूट्यूब वगैरह पे सब मिल जाता है, उधर से देख के फिर डिसाइड किया कि प्राइवेट ही लेते हैं। प्राइवेटली जब आप लेने का एडमिशन सोचे तो फिर आपने किसी कंसल्टेंसी से कंसल्ट किया, किसी यूनिवर्सिटी से कंसल्ट किया, या कैसे एडमिशन का पूरा प्रोसेस रहा? जी नहीं, मैं डायरेक्ट पहले ऑनलाइन में रिसर्च की थी कौन सा अच्छा कॉलेज है, तो फिर मुझे वो स्टेट कॉलेज से अच्छा लगा। फिर ऊपर से वो सीनियर्स का कांटेक्ट मिल गया था, वो सीनियर्स से बात किया, फिर वही लोग इस कंपनी के साथ थ्रू कंसल्टेंसी मिल गया मुझे। यूनिवर्सिटी के बारे में सबसे ज़्यादा पसंद क्या बात आई जो आपने सोचा, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी सबसे पहले तो मैम ये है कि वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और ऊपर से अगर मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो वो FMC का मतलब रूल्स रेगुलेशन अगर फॉलो नहीं करेंगे तो उनको बैन कर देते हैं, और ये गवर्नमेंट है तो ये उतना चांस है नहीं कि अगर कुछ हो जाए। क्या मिस करोगे अपने घर के बारे में, यहाँ क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मिस करोगे जब फॉरेन जाओगे? सबसे पहले तो मम्मी का हाथ का खाना है और दूसरा दोस्त लोग कोई जा रहे हैं साथ में या अकेले जा रहे हैं? नहीं, मतलब मेरा जो करीबी दोस्त है वो कोई नहीं जा रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम माजामिल हुसैन है। कहाँ के रहने वाले? मैं बोंगाईगांव असम से हूँ। आसाम से। आपने मेडिकल की पढ़ाई करने की कब सोची? मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था बेसिकली है, दैट्स व्हाई। और आज ये ड्रीम कम ट्रू होने जा रहा है स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ। कैसे आपने इस यूनिवर्सिटी का पता किया, कौन से किसी कंसल्टेंसी? मैंने कोई कंसल्टेंसी चूज़ किया था, फिर उन्होंने मुझे डॉक्टर फिरोज़ का नाम बताया, फिर डॉक्टर फिरोज़ के साथ कांटेक्ट हुआ, उन्होंने मुझे बताया कि वो स्टेट यूनिवर्सिटी ऐसा है, मतलब मैं फिर यूट्यूब में गूगल में रिसर्च किया, फिर मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने जाके फाइनली उस स्टेट को चूज़ किया। जब आप आसाम से अब फॉरेन जाओगे, ठीक है, क्या रीज़न रहा कि इंडिया से बाहर जाना पड़ रहा है और इसका मतलब रीज़न बहुत सिंपल है। एक तो इंडिया का बहुत हाई फीस स्ट्रक्चर
और बाहर मतलब उसका 40% 50% में हो जाता है, जो कि आपका डिग्री सेम ही मिल रहा है और ड्यूरेशन भी सेम ही है। तो मुझे मतलब ये वर्थ इट नहीं लगता है कि इंडिया में मतलब उसका दुगना या फिर 2.5x ज़्यादा देके कोई सेम डिग्री लेना है। दैट्स वाई मैंने बाहर चूज़ किया है। क्या आपकी यूनिवर्सिटी में ये भी प्रावधान है जहाँ पे कि आप अगर बाहर से पढ़ के आते हो तो इंडिया में एक एग्ज़ाम होता है जो आपको क्लियर होना है? हाँ, FMG उसके लिए है यूनिवर्सिटी में सिस्टम? हाँ, सिस्टम है FMG का। सबसे पहले आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम निनाद है और महाराष्ट्र से हूँ मैं। निनाद, आपने मेडिकल की पढ़ाई करने का फैसला कब किया? मैं पहले इंजीनियरिंग जाना चाहता था, लेकिन 9-10 के टाइम पे कोरोना आ गया था। इसकी वजह से मैथ्स के फियर होता है ना, तो बाद में साइंस फील्ड ली, चूज़ किया बायो, और बाद में इंटरेस्ट बढ़ता गया बायो में। तो फिर आपने मेडिकल की पढ़ाई करने का सोचा? ठीक है। आप कभी फॉरेन जाने का सोच रहे हो मेडिकल के लिए, आपको इस यूनिवर्सिटी में जहाँ आप एडमिशन लेने जा रहे हो जिसका नाम ओश स्टेट यूनिवर्सिटी है, आपने कैसे फैसला लिया कि आप वहाँ जाओगे? इसके बारे में कहाँ से पता लगा? कौन से कंसल्टेंसी से आपने कंसल्ट किया? मेरे फादर के फ्रेंड्स जो हैं उनका बेटा वहाँ पे है, ऑलरेडी है, तो उनके थ्रू जा रहा, और कोइंसिडेंस के हिसाब से फिरोज सर का वो स्टूडेंट है। आपका नाम क्या है? मनीष यादव। कहाँ के रहने वाले? मैं गोरखपुर का। गोरखपुर। आपने मेडिकल की पढ़ाई के लिए बाहर जाने का फैसला क्यों लिया? मैम देखिए, बेसिकली फादर मदर का था कि डॉक्टर बने बेटा, और इंडिया में उस टाइम स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा था, तो ठीक है उस टाइम क्वालिफाई मेरे नंबर्स थे, बट उतना नंबर नहीं थे कि गवर्नमेंट कॉलेज या कुछ मिले। तो ये डिसाइड हुआ कि अगर आपको यहाँ करना है तो उससे बेटर आप बाहर करके आराम से वो सेटल हो जाओ। आपका नाम? मेरा नाम राहुल कुमार वर्मा है। मैंने एडमिशन लिया था नॉर्थ वेस्टर्न के थ्रू ही मेरी एडमिशन वहाँ पे हुई थी। किस तरह की कंसल्टेंसी है? ऑन द बिहाफ ऑफ सपोर्ट एंड ऑल, local support and academically support, they are too good.